evening to all the educationists. I welcome to our online webinar on the topic of assessment practice with principles of new education policy. We are excited to have you join us as we delve into significant changes and impact these policies bring to the educational landscape. I heartily welcome to our today's speaker, Mrs. Seema Naidu ma'am, and our moderator, Mrs. Meena Jaswant ma'am. She's having more than 20-year experience in education field. Presently, she is working in state schools in Tamil Nadu. Now I hand over to Ms. Meena Jaswant ma'am. Thank you. Thank you, Ms. Pinky. Welcome to Education and Learning webinar. Today's topic is Assessment Practices with the Principles of NEP 2020. I'm immensely honored to introduce the esteemed guest with whom we shall be sharing our time to experience. Before that, let us know about her. She has been working in the field of marketing, sales, event management in schools and colleges for the past 30 years. She has done UG degree in the field of BCom in management and sales completed in Nagpur University. Furthermore, she completed her MA in education at Mumbai University. She has been awarded Certificate of Excellence in Architecture of Education by Dynamic Fundamental Education and was awarded as the Best Director in Academics in 3 consecutive years of 2021, 22, and 23. She has attended the summit Time to Grow as a speaker thrice at different locations. The book Educate 2.0 Insights and Ideas from 101 Visionary Educators, which was selected for the Worldwide Book of Records, also has a great contribution from her. Since 1979 to 2009, she has worked and promoted for marketing research and also as a field officer at Nagpur, along with running her own sales promotion activity. She also worked as a pro in Kevalyadam, Lonavala in setting up Kevalya Vidya Niketan CBSE school. Training in life skills, effective communication, stress management, CRM, personality development, creative thinking, time management, team building, and many more skills that are highly useful in our daily activities have been trained by ma'am in almost more than 20 schools. Currently, she is contributing and sharing her knowledge and experience as a director of Arsons English School, Badalpur, since 2013 till date. Now let's welcome Ms. Seema Naidu. We are delighted to have you as a guest today. Please go ahead and share your experience with us, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Seema ma'am, unmute yourself. Good evening, one and all, especially Vimal sir and Pinky ma'am. Given me this opportunity today to put my views and about my experience and all this. And thank you, Meena ma'am. You very well you explained my experience. Only one thing I want to correct it where I am presently as a director. That is the school is Air Sons in Badlapur. It is in Maharashtra, Mumbai. And sorry, ma'am. It is okay. And this is my book where we got the gold medal. I can able to show my book. No, It's later not on. visible, ma'am. Fine. Once we share the screen, that I will show. So, thank you very much. So let me start. Yeah, ma'am. Vimal Yes. sir, can I share my screen? Yes, Yes, please, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, before that, I would like to include this, that 6:35 will be having another link to join it. So we all will be ma'am. joining another link by 6:35. No, ma'am, Sure. we will join through same link, ma'am. Same link only. That's what, by Same link. 6:35. Okay. Yeah, 6:35. Sure. Yes, ma'am, please continue. So before I start my today's topic, this assessment of
The topic was the assessment practice, right? So before that, I want to show the what is the PE, what is the new education policy. Quickly, we will see these all the things. Vision of the policy: develop an education system deeply rooted in Indian ethos. What the CBSE is saying: high quality education to compete in the global world. Must develop respect towards fundamental duties and Constitution of India and have a deep bond with the country. This the CBSE is saying in new education policy. I did this extract from what the NCERT given in 2020. Develop a sense of pride and respect for the country and thereby reflecting truly global citizen. Now we will see key principle of NEP: respect for diversity and local context in all curriculum, pedagogy and policy. Equity and inclusions, community participation, which we always forget. Means हम लोग ने कभी allow me to speak some in Hindi also, because Yeah, I'm a ma'am. basically Hindi teacher, so I can express my view in Hindi better than English. So Sure, ma'am, sure. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यहाँ पे इसका मतलब मेरा ये है कि हम लोग सिर्फ एक कॉम्बिनेशन टीचर और बच्चों के बीच में ही होता है। हम दूसरे लोगों को एंटर ही नहीं करते हैं कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम कुछ इस तरीके से सेमिनार कर सकते हैं या बच्चों को हम असाइनमेंट देते हैं, तो वो अपने कम्युनिटी में भी बात करें, अपने अड़ोस पड़ोस में भी बात करें। इस तरीके के असाइनमेंट अगर हम लोग बच्चों को दे सकते हैं। पेरेंट अभी बीच में हम लोगों ने बच्चों को दिया था मेरे स्कूल में बदलापुर में। मेरी टीचर्स ज्वाइन है इस ग्रुप में अभी, दे कैन विटनेस, दे आर विटनेस फॉर दिस, कि अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने दादा नानी से बात करो। जब हम EVS जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हम लोग उसमें बच्चों को ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क देते हैं कि उनसे पूछो कि आप अपने टाइम में ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, आप अपने टाइम में लंच में क्या खाते थे, और अभी आप लोग क्या लंच में खाते हो, आप लोग अभी ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, कितना पिज्जा, कितना हफ्ते में कितने बार पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो। सो द कंपैरिजन, दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वी शुड गिव। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के तारीख में अगर आज मैं अपना PPT आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बट हम पुराने, अपने आप को मैं बोल सकती हूँ पुराने लोग हैं, तो मैंने अपने बेटे का हेल्प लेके आज मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर पा रही हूँ। तो ये स्टडी में जो पहले नहीं हुआ करता था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज लेकर के आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग। आपका 40 मिनट्स का जो पीरियड है उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो आज का ही आप इवेंट देख लीजिए। पिंकी मैडम और विमल सर ने पता नहीं इसके पीछे कितनी प्लानिंग करी होगी, किस किस को अप्रोच किया रहेगा, और आज का ये वेबिनार कैसे होगा इसकी भी उन्होंने पहले प्लानिंग करी होगी, उसके बाद मुझे उन्होंने अप्रोच किया रहेगा या मीना मैडम को अप्रोच किया रहेगा। नाउ वी आर रेडी एंड वी डन आवर प्लानिंग। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अपनी बुक्स उठाई और क्लास में पहुंच गए कि चलो बच्चों बताओ आज क्या पढ़ेंगे, कल मैंने कहाँ खत्म किया था। नाउ दैट कॉन्सेप्ट इज ओवर, इट वाज ओवर इन द ईयर ऑफ 1990 और 2000-2005 न्यू NCF जब आ गया था, वहां से ये चीजें कॉन्सेप्ट बंद हो गए। नाउ आई विल कम बैक अगेन, द टीचिंग लर्निंग असेसमेंट इवेल्यूशन इज वेरी नेसेसरी। Now here we will see emphasize conceptual understanding rather than rote learning. हमारे टाइम पे होता था टीचर हमें बोर्ड पे लिखा देती थी, आंसर लिखा दिया, भैया इसको पढ़ लो, मैं क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से ही पूछूंगी आपको। बट नाउ द थिंग्स आर चेंज। हाउ इट इज चेंज? what I do that I will share. I do not know other principals how they are running their school and teachers are doing that. After the 3rd standard onward, teacher explain the part, concept and the topic, and then she will ask, throw the questions and students will reply. It will work two ways, that the students understood what she explained and they will answer. Instead of writing the answer on the board, she will ask, now write it down. Those the children understand the concept, they can write in their own word. Yeah,
यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि टीचर का थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, वो ऐसे कि उनको पूरे 30 बच्चों की नोटबुक को, ईच एंड एवरी बच्चों की नोटबुक आंसर को पढ़ना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, बट लेकिन बच्चों की वहां से सोचने की ताकत शुरू होती है। आगे जाके जब उन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है या कहीं और कॉम्पिटिशन्स में लेना है, तो टीचर्स तो सारा टाइम उनके पीछे नहीं होगी स्पून फूडिंग करने के लिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी बच्चों की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सो दे कैन राइट द आंसर देयर ओन वर्ड्स। सो इट इज इक्वली, all are correct. Maybe the different answer you will get, 30 type of answer you will get, but all are correct if they understood the concept. Now, unique capabilities, recognizing, identifying them in each student's skills. Now, HOTS. HOTS means what here? Here, HOT means I want to say higher order thinking skill. अगर हम बच्चों को छोड़ देते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट दे करके, तो यहाँ से उनका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल स्टार्ट होता है एंड दे कैन अंडरस्टैंड। हर चीज उनको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती है, दे कैन मेक देयर ओन ब्रेन, देयर ब्रेन स्ट्रॉम भी वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग curricular and pedagogical structure. The NEP is saying that new curricular structure of school, everyone knows that 5 plus 3 plus 3 plus 4. That is 5 plus means pre-primary 3 sections and plus 1 and 2. And third is third, fourth, fifth is 1. And 6, 7, 8 is 1. Then 9, 10th, 11, 12th is 1. Like this, we are going to be starting new education policy. आंगनवाड़ी भी इसमें आ जाता है, 12th तक पूरा। अभी कंपलसरी स्कूल्स में 11, 12 स्टार्ट करने की बात हो रही है। कई सारे स्कूल में ये चालू हो गया है कि दे स्टार्टेड 11th and 12th ऑल्सो, स्पेशली साइंस एंड कॉमर्स। सेकेंडरी स्टेज, then the greater critical thinking, multidisciplinary study, flexibility and student choice of subjects. पहले एक कॉम्बो बन के आता था कि बच्चों ने यही लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. Now this is changed now. They can go, if they are not good in mathematics and they want to do their education in science, so they can take, instead of maths, accountancy, economics. So this flexibility is there. They can choose. Next is experiential learning. Experiential learning, what I understand that कि बच्चों को हम एक्सपीरियंस कराएं जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। लाइक इफ आई से कि हम अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं या फाइनेंशियल पढ़ा रहे हैं, वी कैन टुक देम इन अ बैंक। बैंक में ले जाके आप हर एक क्या कहना चाहिए, उनके डेस्क पे ले जाके कहाँ पे चेक जमा होता है, कहाँ पे हम लोग को अगर कैश निकालना है तो हमने कौन सी स्लिप भरनी है, कैश काउंटर में क्या होता है, देन बैक ऑफ द बैंक में क्या होता है। सो ईच एंड, हम लोगों ने कई बार बच्चों को बैंक में ले जाके ये किया। आप बैंक ले जा सकते हैं, आजकल तो मॉल में कई सारे शॉप्स हो गए हैं, कई जगह आप ले जाके बच्चों को ये एक्सपीरियंस, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग वी कैन प्लान इन अवर यूनिट प्लान. Then middle stage, that is experiential learning, that are continue. Preparatory stage, play school discovery and activity based and interactive classroom learning. हम बहुत चाह के भी नहीं कर पाते हैं, जो मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट 3 ईयर से मैं चाह रही हूँ कि नर्सरी, दे आर सो स्मॉल, इतना सा उनका ब्रेन है। जैसे एक गुलाब की कली थोड़ी सी खिली, अगर हम उसको तोड़ लेंगे तो क्या होगा, वो खिलेगी ही नहीं। इसलिए 3 साल की एज में बच्चों को वोकेबुलरी से ही हर चीज की पहचान कराना चाहिए। इंस्टेड ऑफ कि आप ये लिखो, स्टैंडिंग लाइन लिखो, तो स्टैंडिंग लाइन लिखो, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो पेन का ग्रिप भी नहीं पकड़ पाएंगे और वो हैंडराइटिंग भी उनकी अच्छी नहीं आएगी। सो बेटर वी गो विद द ओरल एक्टिविटी एंड मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि इंटरैक्टिव बोर्ड है या हम लोगों ने बड़े स्क्रीन क्लासेस में लगाए, वहां बच्चों को आप समझा सकते हैं व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, लाइक दैट। तो ये होना चाहिए, बट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड सभी लोग बोलते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड में पढ़ाई होना चाहिए, सीबीएसई बोलता है, दूसरे बोर्ड बोलते हैं, सारे प्रिंसिपल्स बोलते हैं,
लेकिन क्या एक्चुअल में हम लोग एक्टिविटी बेस्ड में पढ़ाई हमारी हो रही है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इस पे प्रेशर हमारे पेरेंट्स का आता है, क्योंकि किटी पार्टी में बैठ के तो उनको बताना होता है ना कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने राइम्स उनको आ गए हैं। सो ये जो कंपटीशन स्कूल के बाहर चलता है पेरेंट्स के उनके अपने ग्रुप में, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। आपके पांचों उंगलियां समान नहीं है, ऐसे हर बच्चा समान नहीं है। हर बच्चा अपनी बुद्धि, अपनी क्रिएटिविटी, अपने अंदाज के साथ में है। तो उसकी पढ़ाई, उसका उठना बैठना, उसकी एक्टिविटी सबसे बहुत अलग है। तो ये थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें कि पेरेंट्स को डे टू डे हम उनको एडुकेट करें इस मामले में। नाउ शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी लर्निंग असेसमेंट, promoting critical and creative thinking aligned to the 21st century in classrooms। जो मैंने अभी अभी आपसे बोला है कि हम बच्चों को अभी का पढ़ाने का सिस्टम और जो हमारे टाइम पे सिस्टम था, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। बच्चों को हर चीज, आप ये भी देखिए, बच्चों को आप कोई चीज समझाते हैं तो वो आपसे कहते हैं ये ऐसा क्यों है, जो कभी हम लोग नहीं पूछे अपने पेरेंट्स से। तो उनकी क्यूरियोसिटी को हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए मैं कल बताऊं, मैं बाद में बताऊं, अभी अपना ये काम करो फिर मैं बाद में बताऊंगी। ऐसे क्यों? इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा अपडेट रहना है, न जाने कौन सा सवाल कहाँ से बच्चे पूछ ले। सो प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग यहीं से होता है कि बच्चों को जब आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो ये उनको समझाने वाली बात है कि ये चीज क्यों है, ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आपकी जिंदगी में क्यों है। हम मैथमेटिक्स सब बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे वो जिंदगी में जाके कुछ और काम करे, लेकिन हम मैथ्स जरूर पढ़ाते हैं। क्यों? उसका वास्ता खाली साइंटिस्ट बनने से नहीं है, उसका वास्ता खाली डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने से नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में कैसे कैसे आपका रोज का ट्रांजेक्शन्स होता है, आप कैसे जीते हो, आपका टाइम टेबल क्या है, मैथमेटिक्स उसके लिए चाहिए। तो टीचर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये मैथमेटिक्स क्यों, हम टेबल लर्न कराते हैं क्यों। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट, ये नहीं कि आओ चलो हम आज ये टेबल्स लर्न कर लें, हम ये आज कर लें, हम ये प्लस माइनस ये सारे जो हमारे मैथमेटिक्स के साइन है हम वो सिखा दें। बट हम ये क्यों सिखा रहे हैं, उससे उनको एक्सपीरियंस करवाइए, तब जाके बच्चा समझेगा। शिफ्टिंग ट्रेडिशनल असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टॉपिक अभी पढ़ रही हूँ। ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस कॉम्प्रिहेंशिवली एंड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली हम लोग देखते रहना है। बच्चों का एग्जाम खाली पास और फेल के लिए नहीं, बच्चों का एग्जाम ये कि टीचर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्या वो समझा। हमारा फोकस टीचिंग से लर्निंग की तरफ होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो हमारा एग्जाम का जो सिस्टम है उसको भी उसी के तरीके से होना चाहिए। सो फॉर दैट कि हम हर महीने एग्जाम्स कंडक्ट करें, बच्चों के ऊपर प्रेशर लेकर आए, हमने 2 चैप्टर्स पढ़ा दिया तो 2 चैप्टर्स उनके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम छोटे छोटे इस तरीके के टेस्ट ले लें कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं। सो वैसे भी अगर हम लोग एग्जाम लेते हैं, अगर आप सीबीएसई को फॉलो करते हैं तो उसमें यही है कि मिनिमम 45 डेज का डिफरेंस होना चाहिए 2 एग्जाम्स के बीच में। तो ये फॉलो करना जरूरी है। नाउ डिजाइन टूल्स एंड रिसोर्स टू एक्वायर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में हम लोग को ये जरूर देखना है, जो पहले नहीं थे, हमारे पास टूल्स नहीं थे, हम डिजाइन नहीं कर पाते थे, हमारे बीएड में इस चीज को सिखाया भी नहीं जाता था कि क्या क्या कैसे डिजाइन करना है हमारे चैप्टर को पढ़ाने के लिए, हमारी मेथोडोलॉजी। बट नाउ द वास्ट थिंग्स यू आर अवेलेबल इन द मार्केट and the school also. Our chairman, our school owners are allowing us to get these all the things, tools। आप चार्ट्स के अलावा, पहले ऐसा था कि सिर्फ चार्ट ही चार्ट होते थे, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सो यू हैव सो मेनी व्हाट आई शुड से कि पीपीटीज आपको मिल जाएंगे, राइम्स मिल जाएंगे, काफी चीजें आप लोगों को मिलेगी, और वहां से आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो दिस इज अ लर्निंग आउटकम्स। नाउ रिड्यूसिंग करिकुलम टू द कोर एसेंशियल टू मिनिमाइज रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग कम करना है, बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि आपके चैप्टर
आई कैन से यस 1 to 5 में ईवीएस जो है, आई थिंक अगर हम ईवीएस को एग्जांपल लें, सो वी हैव 23-24 चैप्टर्स, तो वो पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना कई बार डिफिकल्ट होता है। फेस्टिवल्स आ जाते हैं, छुट्टियां आ जाती है, 220 days कंप्लीट भी कई बार नहीं हो पाता है। सो व्हाट वी डू, सम चैप्टर्स वी टीच इन अ एक्टिविटी बेस, तो वो हमारे चैप्टर्स को रिड्यूस कर लिया हम लोगों ने। Promoting sports, integrated and art, integrated learning in classroom for holistic development. Now, CBSE new education policy is saying integrated. What integrated? If I am teaching in my mathematics shapes, triangle, rectangle, square, so this we can integrate with our art and craft. हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर को हम बोल सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक चालू है, तो आप जब आप आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाओ, आर्ट्स पढ़ाओगे, तो बच्चों को ये आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करो, मैं अपने तरीके से मैथ्स लेवल पे मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। सो ये चीजों को इंटीग्रेट करके चलना है, साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जब हम अपना यूनिट प्लान बनाते हैं, टीचर्स अपने प्लानिंग बनाती है चैप्टर वाइज, तो उसमें ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए, तब आपका एग्जाम लेने का कोई तरीका बनता है, डिजाइन होता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टेजेस इन स्कूल। फाउंडेशनल स्टेज में प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पेडागोजी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फोकस ऑन गुड बिहेवियर, courtesy, ethics, personal and public hygiene, cleanliness, focus on teamwork and cooperation, preparatory stage. एक चीज यहाँ मैं पॉइंट करना चाहूंगी, फोकस ऑन टीम वर्क। नाउ डेज वी आर सीइंग दैट द न्यूक्लियर फैमिली में एक ही बच्चा होता है या दो होते हैं। अब एक ही बच्चा होता है तो फादर को लगता है मैं डॉक्टर हूं तो इसने डॉक्टर बना है, मदर अगर कुछ और प्रोफेशन में है तो उसको लगता है नहीं मेरा बच्चा यही करना चाहिए। दोनों का प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, तो और एक ये प्रेशर से बाहर निकलना है। दूसरा, बच्चों में टीम वर्क। आप देखिए, अगर आपके पेरेंट, मैं सभी प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने जब पेरेंट से बात करेंगे तो उनसे पूछिए कि वो ट्यूशन में क्यों भेजते हैं बच्चों को। मैक्सिमम पेरेंट्स इसीलिए ट्यूशन में भेजते हैं। पहला पॉइंट, इफ दे आर नॉट वेल एजुकेटेड। सेकेंड पॉइंट, बोथ आर वर्किंग, बच्चा उनसे पहले घर आ जाता है तो वो घर में अकेले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास में दादा दादी नाना नानी लोग हैं नहीं जो घर में उनका केयर करें। दे विल स्टे अलोन एट होम, तो पता नहीं वो घर पे क्या करेगा। उससे अच्छा है आओ घर में अपना ड्रेस चेंज करो एंड गो फॉर द ट्यूशन। So at least the child will spend 3 hours time in a tuition. So parents are okay, भैया अभी वो ट्यूशन में है, चेक कर लेंगे, फोन कर लेंगे। तो ये टीम वर्क बच्चों में नहीं आता है क्योंकि वो अकेले अकेले हैं। तो हम घर में तो बच्चों को सिखाते ही नहीं है टीम वर्क क्या होता है। एक रोटी है, मिल के खाओ, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है, उसको सब मिलके इस्तेमाल करो। तो ये जो टीम वर्क है ये हम स्कूल में बच्चों को अभी फोकस करने लगे हैं। हमारे असाइनमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स जो छोटे बच्चों के लिए हैं वो हम लोग प्लान इसी तरीके से करते हैं कि बच्चों में टीम वर्क करने की आदत हो। टीम वर्क करने में क्या आएगा, यू विल लर्न द टॉलरेंस। उनको आएगा कि भैया हमको सबके साथ मिलके एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने का ये नेचर उनके अंदर आएगा, जो आजकल जब आप देखो यंग जनरेशन के बच्चों को, उनको नहीं है ये आदत, ये हैबिट नहीं है, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज स्कूल में अगर थोड़ा सा फोकस करके चलाएं। यहाँ इसके लिए हम लोग, हमारे स्कूल के लिए हम लोग प्लान करते हैं पैजामा नाइट। दिस पैजामा नाइट इज सैटरडे इवनिंग, बच्चे आते हैं एंड दिस ऑल आर द स्मॉल किड्स, नॉट मोर देन द 5th स्टैंडर्ड। हम 5th स्टैंडर्ड के अंदर के बच्चों को बुलाते हैं। सैटरडे इवनिंग आएंगे, अपने साथ बेड वगैरह लेकर आएंगे और स्कूल में ही खाना बनेगा और बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है। एक बच्चा प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक स्पून करेगा, एक पानी सर्व करेगा, फिर ये सब मिल के काम होते हैं। उसके बाद में अपना बेड वो खुद लगाएगा, अपना बैग वो खुद बनाएगा, पेरेंट्स के भरोसे पे नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें कोऑपरेशन करना और टीम वर्क करना, इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप अपने स्कूल में कराते हैं तो बच्चों को ये सीख जरूर हो जाएगी। Now, gradual transition from play-based learning to more formal classroom learning. फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग तो करना ही करना है, जहां आपको रिटर्न वर्क कराना है या एक्सप्लेनेशन पार्ट है।
लेकिन साथ में आप एक पीरियड ये भी रखिए कि आप उसको बाहर लेके जाके, बाहर लोगों से मिलवा के, या जो उनका टॉपिक चल रहा है उसमें उनको बाहर भी एक्सपीरियंस कराएं, नॉट ओनली द फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग. इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग, introduction of subjects including physical education, art, languages, science, and mathematics. Emphasis on reading, writing, speaking. More frequent assessment of modules. Now middle stage. Middle stage means 4th, 6th, 7th, 8th standard. Subject oriented pedagogical, logical and curricular methodology. Subject teachers for learning discussion of the more abstract concept in each subject across the science, mathematics, arts, social science and humanities. ह्यूमैनिटीज तो सिखाना बहुत जरूरी हो गया आज के तारीख में, जो हम लोग रोज टीवी में न्यूज देखते हैं. द हाई स्कूल मीन्स सेकेंडरी स्टेज, 4 years of multidisciplinary study, greater depth, greater critical thinking, greater attention of life aspirations, greater flexibility and student choice, exposure to more subjects and enable greater flexibility. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हमारे सारे टीचर्स जो प्ले ग्रुप के हैं उन लोग करते हैं, और ये कैसे करना है ये उनके लिए है. नाउ एनकरेजिंग 21st century skills in the classroom. I will start from digital literacy. Digital literacy पहले बहुत कम, बहुत छोटे से शुरुआत हुई थी. I think 2005 में कि बस कंप्यूटर दिखाया जाता था, बच्चों को ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था, जस्ट कि ये इसके पार्ट्स क्या हैं, ये क्या काम करता है. Now we will see so many things. हमारा वास्ट आ गया है डिजिटल लिटरेसी में. प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को आना जरूरी है. यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम लोग जब हमारा सीसीई चलता था तब 9th स्टैंडर्ड के लिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए, if those are the old principles, they might be know that PSA एग्जाम फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होता था प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम. हम बच्चों को एक टॉपिक देते हैं और उसके ऊपर बच्चों को कहते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. रीड दिस टॉपिक, हैव अ टाइम फॉर 2-3 minutes और 5 minutes एंड कम बैक एंड देन वी विल डिस्कस. अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसा था कि 9th स्टैंडर्ड के एक बच्चे, उसके एग्जाम्स का टाइम सामने आ रहा था. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. पेरेंट्स को रात में कहीं जाना है तो दे आस्क हर कि आप चलोगे हमारे साथ. तो शी आंसर, नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, मेरे एग्जाम्स है. तो दे सेड ओके, लंच आप अपना डिनर कर लो, पढ़ाई कर लो एंड देन गो टू बेड, वी विल कम. पेरेंट्स घर से बाहर जाते साथ घर की लाइट्स चली गई, इलेक्ट्रिसिटी गॉन. अब बच्ची घर पे अकेली, तो वो पहले क्या करेगी? पहले कैंडल जलाएगी या टॉर्च ढूंढेगी या वो पेरेंट्स को फोन करेगी, क्या करेगी? ये क्वेश्चंस हम लोग ने पूछा था एक स्टूडेंट को. तो यही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वो कैसे करेगी, क्या करेगी, ऐसे सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को सेव करते हुए मैनेज करेगी. हैंडल, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड इन एजुकेशन, सो हाउ शी विल मैनेज. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को आना है. अब आज के तारीख में आप देखिए, एक इशू चल रहा है कोचिंग क्लास का. मेरे मार्क्स कम नहीं आए, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सारे पैसे खर्च किए मेरे लिए, मुझे कोचिंग क्लास के लिए एक छोटे से गांव से बड़े शहर में दिल्ली में भेज दिया, और उसने उसको क्रैक नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया. क्या सुसाइड कर लेना ये सही डिसीजन है? ये हमारे बच्चों को सिखाने की बात है. अभी हम स्कूल लेवल में ये बच्चों को जब सिखाते हैं कि प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है, जब प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी उसी के साथ होता है. तो बेटर वी चूज द सॉल्यूशन. आप जरा भी बच्चे लोग नहीं सोचते हैं कि पेरेंट्स किस स्थिति में उनके लिए कैसे कैसे मेहनत करते हैं. दे डू द जॉब एंड सो मेनी थिंग्स, सम एक्स्ट्रा वर्क आल्सो टू गेट एंड अर्न द मनी, बिकॉज दे वांट देयर चाइल्ड शुड बी हैप्पी. तो हमने हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि आपने सुसाइड कर लिया, अपनी जिंदगी से चले गए, जो पीछे रह गए उनका क्या, वो उसके बारे में आपने नहीं सोचा. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम बच्चों के साथ में डिस्कस करते हैं तो ये टॉपिक्स आने चाहिए. नाउ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में मैं इसको लिंक करूंगी.
हमारे बीच में कई बार होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होते हैं, या तो वो फादर से डरते हैं बात करने में, या नहीं बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम वो सोचते हैं मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेट जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के या अपने टीचर्स के साथ बैठ के करते हैं तो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। वो गैप को बंद करना चाहिए। आप जितना गैप रखोगे उतना ही गहरा होता जाएगा। सो बेटर जो पैच अप, you talk with your parents, you talk with your teachers, you talk with your friends also. The child when is grown in they are in secondary level, they are much means उतना दिमाग उन लोगों के पास होता है कि वो समझ सके बातों को, तो अपने दोस्तों से बात कर ले वो। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों को ये क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। creativity, on creativity we can see in their assignments, their project work, their behavior. When you are planning some event in the school, annual day हम लोग प्लान करते हैं, तो ये creativity वहाँ पे नजर आती है उन लोग का। आप बच्चों से ये काम करा सकते हो, आपको मालूम पड़ता है। इवन आई मस्ट से कि हमारे टीचर्स का जब अपॉइंटमेंट होता है और हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोग ये भी उनसे पूछते हैं कि चलो ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में आइए, लेकिन आपकी चॉइस और क्या, आपकी हॉबीज और क्या क्या है। तो हम वहां से हम लोग को पता लगता है कि ये टीचर की क्रिएटिविटी कहाँ है। सो वी कैन यूटिलाइज अवर टीचर इन अवर स्कूल डे टू डे प्रोग्राम, डे टू डे रनिंग स्मूथली। हेल्थ एंड फिटनेस, ये आज के तारीख में बहुत जरूरी हो गया। पहले तो यही होता था, मास पीटी करा लिया वीक में एक बार, बात खत्म हो गई, और फिर एक पीरियड होता था उनका वापस से एक स्पोर्ट्स पीरियड। लेकिन आज ये यही नहीं रुका है, हम थ्योरेटिकल भी पढ़ा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन। इफ यू गो एंड सी द एकेडमिक पार्ट ऑफ द CBSE, you will get so many list of on health and fitness. Then social responsibilities, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे क्या होने चाहिए, ये भी हमें स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। देन एथिक्स, बच्चों को सही क्या और गलत क्या और एथिक्स, ये सारी चीजें उनको मालूम होना चाहिए। देन साइंटिफिक टेम्परल, देन कोलैबोरेशन, हम मिल के कैसे काम करें। आप आज देखिए सोशल मीडिया में देखने के लिए मिलता है, मैं बार बार सोशल मीडिया इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती हूँ, न्यूज देखती हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि आप एक ग्रुप में होते हो, लेकिन जब हम उनको अलग अलग बात करेंगे तो हर एक का व्यू अलग है। एग्जैक्टली, आई डू अग्री, एवरीवन इज डिफरेंट। लेकिन जब आप एक ग्रुप में हो तो आपकी बात एक होनी चाहिए। वहां आप ये ना दिखाओ कि मैं इनसे अलग हूँ। इनसे अलग दिखाने का टाइम आपको कब आएगा, जब आप इंडिविजुअली किसी टास्क को आप काम करते हो, तो वहां आपकी बात समझ में आती है कि इंडिविजुअली हाउ गुड यू आर। लेकिन कई काम ऐसे हैं कि जहां आपको कोलैबोरेशन के साथ में ही करना है, टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ने कोई इवेंट को प्लान किया है, तो हमारी टीचर्स का काम है कि वो टीम में रह करके काम करें, तो कोई भी इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक छोटा सा स्लाइड ले लूंगी मैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलिस्टिक हेल्थ, डाटा साइंस, ऑर्गेनिक लिविंग, डिजाइन थिंकिंग, मशीन लर्निंग। बीच के मैंने स्लाइड्स इसलिए हटा दिए हैं कि अभी इस टॉपिक को वो रेलेवेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, एम ऑफ असेसमेंट, shift from rote memorization skills to format is more competency assessment, promotes learning and development of students, test higher order skills such as analysis, critical thinking and conceptually clarity. Assessment for learning, optimize learning and development for all students. This will be the underlying principle for assessment at all levels of education. Later we will see describe in my different दूसरे slide में मैं आपको explain करूंगी ये। Report card assess holistic development of each child. अभी CBSE ने नया रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। उसमें ये सारी चीजें आनी है जो पहले रिपोर्ट कार्ड में नहीं आती थी। द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल and will accompanied by the parent teacher meeting in order to actively involve parents in their children holistic education and development. Results of the school examinations,
to be used only for development purposes of the school education, for public disclosure by schools of their overall student outcomes, analyzing students' outcomes for continuous monitoring and improvement of the child, of the progress in project-based and inquiry-based language, progress in cognitive, affective and psychomotor dominance. This is for pre-primary. Quizzes, role play, group work, portfolio. I think all schools started portfolio making of students, class 4th onward. Interactive questionnaire for parents, teachers, and students. Self-assessment and peer assessment, teacher assessment. Now I'm shifting to my another PPT. कहाँ से जाएंगे? For the now I'm starting the assessment and report card both. So first assessment, uniform system assessment for all CBSE schools to develop confidence amongst students to follow CBSE pattern from class 6 to 10 and later 11th and 12th. Ma'am, But now- sorry to interrupt, ma'am. The next slide is not seen, ma'am. It's a report cards to issue holistic development is only seen here now. अच्छा ये नहीं दिख रहा वहाँ, हाँ, full slide नहीं है, ma'am. Slide. full slide नहीं है. This is the previous slide only. तो दूसरा पीपीटी लगाना पड़ेगा. सर लगा रहे? यस. Yeah, now अभी we दिख can रहा see. है ना? हाँ, Okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. We can. Uniformity in structure, exam, and report card. No, first, this is highlight, first slide. Uniform system of assessment for all CBSE schools to develop confidence amongst students so follow CBSE pattern from class 6 to 10 and later 11th and 12th. Common report cards, 11th and 12th also on term basis, 2 term for 2022, 23, 24. इसमें हम कर चुके हैं. अप्रैल 1 से हम लोगों का पहला टर्म स्टार्ट होता है. अप्रैल 1st to September first term, then October 1st to March is second term. Now it is about to from next year 2 board exam will be going to be conducted for CBSE school, one in December and other one in March. इसके 2 बेनिफिट हैं. जो बच्चा कम मार्क्स लाया है या कंपार्टमेंट आया है, तो अभी कंपार्टमेंट का एग्जाम अभी हुआ, तो दे स्पॉइल द होल 1 year. So instead of spoil the year, so CBSE is bringing up for next year, that is for 25-26. दिसंबर में एक बोर्ड एग्जाम होगा 10th का और 12th का, एंड मार्च में होगा. इसमें बेनिफिट बच्चे ले सकते हैं जो फेल हो गए, कंपार्टमेंट आ गए हैं, या किसी बच्चे को लग रहा है नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो दे कैन सिट इन अ मार्च एंड दे विल फॉलो. दोनों में से जो एग्जाम में के मार्क्स अच्छे हैं वो मार्क्स को उन लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड फॉर 12th स्टैंडर्ड फॉर डिग्री. like 2 report card will be there, but it is not कि सारे बच्चे उसमें अटेम्प्ट करें. जो बच्चा चाहता है वो कर सकता है. To improve their performance in the board exam, to ensure quality of learning and education, schools to issue report cards for term exams on formats and base and same pattern provided by CBSE, final certificate by board. Uniformity, structure, exams, and report cards. The CBSE wants to ensure uniformity in the course structure, NCERT syllabus, uniform examination system, and report cards issued by the CBSE schools all over the country and abroad to facilitate. अब ये पहले होता था कि CBSE का सिलेबस, अगर पुराने भी प्रिंसिपल्स मेरे साथ यहाँ पे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि हर एक स्टेट में अपना अपना सिलेबस होता था, अपना अपना लैंग्वेज को वो प्रायोरिटी होती थी. इंग्लिश ए लेवल है या बी लेवल है, हिंदी है भी या नहीं है. लाइक तमिलनाडु मीना मैडम बताएंगे कि हिंदी पढ़ाते थे या नहीं, या तमिल में ही सब सेकेंड लैंग्वेज होता था. सो ये सारे स्क्रैटेड जो थे, अगर एक बच्चा दूसरे स्टेट से जा रहा है ट्रांसफर होके, उनके लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होती थी, क्योंकि केवीएस में हर बच्चों को तो एडमिशन मिलती नहीं थी. सो दे हैव टू गो फॉर द प्राइवेट स्कूल, CBSE स्कूल.
तो इन सबको पहले सारे स्टेट्स में ये पहले तो सबका कॉमन सिलेबस किया। दैट इज वंडरफुल कि बच्चा कहीं से भी कहीं जाता है ट्रांसफर होके तो उनका सिलेबस नहीं चेंज होता है। सो वी शुड थैंक्स टू सीबीएसई दैट कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया एक झटके में। अब बच्चा अभी यहाँ से अब्रॉड जाता है तो आपको मालूम है या शायद सभी को मालूम होगा, CBSE school not only in India, it is out countries also like Dubai, UK, US and Japan. We know one of the school in Japan, जैन सर जो यहाँ पे अभी हमारे साथ में है, उनके कोर ग्रुप में है, एडवाइजरी ग्रुप में है, साल के 2-3 मीटिंग्स वो अटेंड करते हैं। एंड दैट स्कूल इज रनिंग बाय द वन ऑफ द इंडियन फैमिली, जैन फैमिली, दिल्ली बेस्ड। तो ऐसे ही हमारे कई सारे CBSE स्कूल वहाँ हैं। वहाँ का IB है, लेकिन इतना हम लोग कर सकते हैं कि हमारे पास बच्चे वहां से यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से वहां जा रहे हैं, सो दे कैन सिलेबस विद से पढ़ सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, या हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वन CBSE स्कूल टू अनदर और स्टडीज वेदर ऑनलाइन ऑफलाइन, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। रिमूव पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंजाइटी ऑन देयर डिसलोकेशन। ये पेरेंट्स के लिए हमेशा होता था कि अभी उनका ट्रांसफर हो गया है, क्या करना है बच्चे, और उनके लिए मदर बच्चों को लेके वहीं रह जाती थी, फादर यहाँ आ जाते थे। तो ये सारी एंजाइटी इन लोगों की CBSE ने खत्म कर दी है। न्यू सिस्टम ऑफ पीपल्स असेसमेंट applicable to class 6 to 10 and 11th and 12. नो फॉर्मेटिव असेसमेंट। CCE के टाइम पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते थे, हाफ ईयरली में के पहले 2 हो गए, फिर ये हाफ ईयरली हो गए, फिर हाफ ईयरली के बाद 2 असेसमेंट एंड देन फाइनल एग्जाम। सो ये बच्चों के ऊपर एक प्रेशर और टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर होता था, हर बार क्वेश्चन पेपर बनाओ, आंसर शीट चेक करो, उनके रिजल्ट्स बनाओ। तो ये सब चीजें अभी खत्म होके term wise syllabus for 11th and 12th exam provided by CBSE, full rationalized course in term ending exam, onward in 5 subjects: English language, Hindi, science, maths, standard maths and basic maths, social science, no streaming binding, additional subjects if any, IT, mathematics, subjects with internal assessment, practical of 20 marks, मैथमेटिक्स का जो कोड नंबर है 041 के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो प्रैक्टिकल ऑफ 20 मार्क्स, टर्म 1 पीरियोडिक टेस्ट 05 मार्क्स, मैथ्स एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा 5 मार्क्स, टर्म 2 पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, मैथ्स एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट of 1 activity and viva 5 marks. Science subjects with practical of 30 marks, physics, chemistry, biology, biotechnology, psychology, geography, computer science, physical education. Now the exams are for physical education also. Practical work would be divided into 2 terms as deleted in the term wise curriculum for the purpose of examination. Students would be undertaking the practical work of term 1 and term 2 in the respective terms. Term 1, a 15 marks practical as deleted in the curriculum would be conducted under the supervision of subject, teacher, internal examiner. Term 2, at the end of term 2, a 15-mark practical would be conducted under the joint supervision of board appointed external and internal examiners. Humanities subjects with project work of 20 marks, economics, business studies, accountancy, history, political science, sociology, legal studies. There would be only 1 project for the session. The project work would be divided into 2 parts, that is deficiency identification, collection of material, organization, evidence, discussion, reporting, finalization, completion, reporting, certification, references, assessment. Now language. Subject with assessment of listening and speaking skills.
This is for all languages, like in Maharashtra, English A language, B Hindi language, and third language is Marathi. And third language, recently CBSE allowed for the state language, because that we are started from this year, 9th standard Marathi. Assessment of listening and speaking skills, ASL, 10 marks, will be done in person by internal examiner. Term 2, assessment of project and viva based on the project work will be jointly done by external examiner and internal examiner. Marks will be 10. Project can be in the form of neighborhood survey, role play, performance, individual, group, etc., online or in person as situation allow. Student shall submit a project report, 5 marks, and viva, 5 marks, shall be conducted by external examiner. Assessment of listening, speaking guideline are given at Accenture in Accenture 2 and also provided along with respective language curriculum. Annexure, sorry, I've wrong pronounced this. Guideline are given at annexure. External examiner for practicals. No external examiner for class 10. Practical 70-30 science. Maths 80-20 activity. Social science project language ASL also portfolio assignment project subject enrichment etc. For class 12 external examiner for subjects with project work 80-20. For 12th history, political science, geography, economics, business studies, accountancy 80-20 project work, subjects with practical 70-30 marks, physics, chemistry, biology, physical education, IP 065. Computer practices 083 code number, IT 60-40 practical. Maths AI, IA 80-20, English core Hindi, core ASL, IA 80-20. Now this is table, how you will give the marks. I will start from here. This is for the class 6 to 8, 6, 7, 8. Am I right, Jen sir? Jen sir is here and he will correct me if I am saying some wrong. Pre-midterm, online MCQ maximum 3 periodic test, best to be conducted, counted, that is 25%, and the portion is full, 40 marks, full 100, 10 marks for each term, total 20. This exam time will be 1.5 hours. Periodic test 3+3, multiple assignments 2+2, quiz, oral test, speaking skills, role play, concept map, exit cards, visuals, expressions, etc. Term ending exam September, 50% कोर्स होगा क्योंकि 25% आप ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में ले चुके हैं, तो हाफ ईयरली में पहला 25% एंड उसके बाद का 25% मिला करके 50% हाफ हमारा हाफ ईयरली में आएगा. दैट वुड बी 40 मार्क्स. कंप्यूटर इंटरनल मार्क्स 25 पर टर्म. टर्म 1 3 hours, टर्म 2 2 hours. Notebook work +2+2, self-assessed portfolio, achievements, reflections, narrations, journals, etc. Now, post-midterm, January, 50% of second term. Full 40 marks, 1.5 hours, maybe assessed twice in September and February. Annual exam, written test March and April. 100% पूरा कोर्स होगा. Full 40 marks, full 2 second term, 9 and 10, 3 hours. MCQ plus sub enrichment 3+3 essays, projects, practical works in science. Now this is for 11th and 12th. Those schools are having 11th and 12th. This table for that. आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या अदरवाइज आई विल शेयर
with the Vimal sir, so they will share with you. Okay. This is a report card. But now it is changed because of holistic report card published. We have to follow that. ये लास्ट ईयर तक के लिए हम लोग का था रिपोर्ट कार्ड. असेसमेंट सिस्टम जो एनएपी ने नया लेकर आए हैं 21-22 से हम लोगों ने एप्लीकेट किया है. टोटल असेसमेंट फॉर 100 मार्क्स, बोर्ड एग्जाम फॉर 80 मार्क्स इन क्लास 10, सेम फॉर क्लासेस 6 to 9, passing marks 33% in the subject 5. Internal assessment 20-30 marks, pass marks in internal assessment 33%, assessment as learning and assessment in learning, as learning and in learning. Marks and grade both will be awarded 6 to 8 and 9th and 10th report card sample. 9-point grading that you all know. 2 term वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. चलिए आप लोग टीचर डायरी कैसे मेंटेन करते हैं दैट आई डू नॉट नो. वी फॉलो द सीबीएसई टीचर डायरी, दैट इज वी मेक द नॉट लॉग बुक. एवरी पीरियड वी राइट द चैप्टर वाइज. एक चैप्टर के लिए आपको कितना पीरियड लगेगा हम वैसे यूनिट प्लान बनाते हैं. कभी इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं मीनू मैम या विमल सर कभी चांस दिए तो, क्योंकि इसको मैं अगर शुरू करूंगी तो अनदर 2 hours आई रिक्वायर. Syllabus breakup, unit plan forecast with teachers and pupils activity assignment and worksheet record. Subject enrichment of activities and notebook assessment record portfolio. Portfolio, I think all principals started for students. They will write their own project work, practical record. And how you will write the project work here. थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी how the children and how you will check the project work. Introduction, initiation, planning, execution, implementation, closure and summarization, and viva. How they create, they will show their creativity and their critical thinking in their project work. Language skills, oral play, speaking, communication, presentation, time limit, content, presentation, creativity, originality, language, grammar, vocabulary, expression, body language, impression. Body language and impression, expression, जब आप problem solving और ISL का ASL एग्जाम आप लेते हैं तब आप ये सारी चीजों को काउंट करना है. Thank you very much. I have done here. Participants can ask any doubt if you have, please. Yes, please. If anyone asks any questions, kindly. Now I can show my book. नहीं दिख रहा है शायद ना. Ma'am, because you are given the background, that's what it is not That's right, that's right. Visible. Yeah. Yes. Yeah, dear educators, kindly, the question and the session is going on. You may ask any question from our invited speaker. Yes, please. मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है. Yes, please, मैम ma'am. आपने शुरू में कहा था कि 2 बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे 10th के लिए, जैसे कि 12th के पहला लिए. अगर अटेंड नहीं कर पाए तो सेकंड का वो चूज कर सकता है. इन केस वो सेकंड में भी अगर स्कोर नहीं कर पाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका फिर से नए सिरे से जाओ. Oh my God. नो, इन अभी केस आई एम आस्किंग. हाँ, now the CBSE in planning, I met Sayyam sir also last month.
सो इज सेइंग कि उसके ऊपर उनका काम चल रहा है, उसके टर्म्स एंड जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब उन लोग प्लानिंग कर रहे हैं, दे विल कम अप। एक्चुअली इसी साल शुरू करना था, बट उन लोग की तैयारी नहीं थी बेसिक, सो बोल रही दे है विल so coming up with this two board exam 25 and 26, not now, not this year. Because ma'am, कंपार्टमेंट इसके in, बाद कंपार्टमेंट आ जाएगा। in the Yeah, अगर Right. सेकंड में भी फेल होता है Hmm. we can Okay, get sir. compartment. Let me Ah. introduce Jain sir first. Today I am here because of Jain sir. He is my mentor, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ। तो Jain sir, सर welcome, है please. Please. Jain sir is Welcome, deputy sir. commissioner, retired deputy commissioner, and this is his second inning, 25th. Welcome, sir. Welcome in our webinar. Thank you. Nice meeting all of you. It was a Same nice here. lecture. ठीक है। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Seema, Very Se- nice. Seema ma'am. नमस्कार। Namaskar, अच्छा sir. लेक्चर था। Seema ma'am, in the university Ji, sir. side, there is a mercy chance. Cause student get a one chance for the repair, then again repair, then for the mercy chance, the last chance. Is it possible in the CBSE? Is there any? No, I did not understand, sir. First, student get a repair from the main exam. Then again, repair in the examination for the first time. The second time, the CBSE denied the student to reappear in the examination. But in the university side, there is a mercy chance, we can say. The student can appear. ओपन स्कूल में ही कैन गो फॉर ओपन स्कूल। ओपन स्कूल का भी सीबीएसई का एग्जाम लेती है। जी। नॉर्मल बोर्ड में नहीं आता है तो वो ओपन स्कूल से एग्जाम दे सकता है। NIOS, Okay. that is known as NIOS. Right. And it's valid as well as CBSE, Yes, if I'm not Yes. mistaken. yes. Okay. Yes, please. One Any question question? from the audience. What are the benefits of NEP to the students? NEP to the students. Yeah. कितना फ्लेक्सिबल हो गया है, पहले कितना मुश्किल था बच्चों को पार्टिसिपेट करना। उन लोग जैसे अभी हमारे पास दिया हुआ है कि बच्चे पेन एंड पेपर टेस्ट में थोड़े कम मार्क्स ले लिए तो उनकी परसेंटेज जो कम हो गई है, तो इंटरनल मार्क्स में वो स्कोर कर सकते हैं, जो NEP ने जो पैटर्न अभी बनाया है। तो ये बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, इजी कर दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ाई होती है। बच्चों को मौका नहीं दिया जाता था, चलो 2-4 बच्चे वीक हैं, लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता था कि वो अपनी बातों को रखें। उस पे टीचर्स का जवाब कैसे होता था, अगर आपको याद होगा, मेरे टाइम पे तो याद है क्योंकि 2-3 बार मुझे मिल चुका है। अरे मुझे ज्यादा मालूम है, तुम्हें मालूम है, जो बता रही हूँ सुनो। दिस Exactly. काइंड ऑफ आंसर्स टीचर सपोज टू गिव, लेकिन अब वो नहीं है। अब बच्चों को मौका दिया जाता है, बल्कि हम लोग, मैं और जैन सर इस बात को अग्री करते हैं कि आपका 40 मिनट्स का पीरियड है तो 20% टीचर बोलेगी और 80% बच्चे बोलेंगे, तो हर बच्चे को चांस मिलता है अपनी बात को रखने का। ये NAP का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि बच्चे Is it अपने possible? Is it possible to implement that policy in 25-26? व्हाट 25 to Yes. 26? पॉसिबिलिटी इसमें है मैम की नई एजुकेशन पॉलिसी है कि 5-6 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर होता है तो हाउ कैन वी गाइड द टीचर, क्योंकि टीचर्स को गाइडेंस देना बहुत जरूरी है। वो अभी गाइडेंस से शुरू देने कर देना चाहिए गाइडेंस। वो तो स्टार्ट तो अभी से हो गया है, कुछ स्कूलों ने We have अडॉप्ट कर already लिया। started it, sir. We have Yes. started, but not in all schools, na? That's why I'm asking you. Right. We इसलिए तो should 50 start it आवर्स, right now. हाँ 50 आवर्स का ट्रेनिंग यही होना चाहिए मैम, जो हर जगह Let's see. नहीं पहुंच पा रहे सब लोग। Yes, exactly. Hope for the best for next session. Right. आप जैसे और 2-4 हो जाए जो ऐसे वेबिनार्स करें, तो आई मैम, थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर। ब्लेसिंग्स है ना मैम, अब तो वीके सर भी हमारे साथ है, तो ब्लेसिंग्स तो हमारे सिर बिल्कुल, पर है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू लेवल बेस्ट। डेफिनेट, बिल्कुल Seema ma'am, same Definitely. question from the same teacher. Why the syllabi reduced day by day? And सिलेबस रिड्यूस। burden increase on teacher. बोलिए जैन सर।
क्या चीज, किस चीज के बारे में? सिलेबस क्यों डे बाय डे कम होते जा रहा है? राइट, एम आई वो राइट इसलिए दर्शन? कि Yes, yes, ma'am. Yes. इसलिए कि हम कहते हैं कि बच्चों पर ज्यादा जोर देना है, बच्चों पर ध्यान ज्यादा देना है। पहले टीचर बोलता था, नोट्स डिक्टेट करा दिया और उसी में से परीक्षा ले ली। अब बच्चों ने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम क्या है, और एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम। तो बच्चा थोड़ा सीखे लेकिन अच्छी तरह से सीखे, इसलिए जरूरत पड़े तो सिलेबस कम कर दो। But सो sir, दैट day इज द by day आइडिया। teachers का स्ट्रेस तो टीचर्स का डे बाय डे, जैसे हम लोग आज देख रहे हैं, तो टीचर्स का स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ रहा है। हम बच्चों का तो सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, पर स्ट्रेस टीचर यस, का क्यों बढ़ यस। रहा है? अभी तक टीचर्स का सिलेबस ज्यादा बर्डन नहीं था, अब इस स्कीम से टीचर्स का बर्डन बढ़ेगा। हर टॉपिक के लिए उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग निकालना है, इसमें क्या मुझे एक्सपीरियंस देना है बच्चों को, वो जरूरी है। तो पता इसलिए ये टीचर्स का बर्डन तो बढ़ेगा। मुझे बर्डन नहीं लगता है, बिकॉज आई एम बाय चॉइस टीचर। जो एक्सीडेंटल टीचर्स हैं उनके लिए बर्डन है ये। यस, The subject should be taught, enjoy, and make a यस, fun learning. That's depend upon person to एग्जैक्टली, person. यस, ट्रू। Vishnu sir, Yes. Vishnu sir, you may ask the question. Vishnu sir, Yeah, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. good evening, गुड sir. How are you, इवनिंग, sir? गुड इवनिंग। Yes, I'm please. very I'm fine, sir. I'm fine. बेसिकली सर, जो अभी डिस्कशंस चल रहे हैं स्पेशली बोर्ड के ऊपर ही था, जो मैम ने बताया है कि 2 बार बोर्ड होंगे। तो इसमें जो पहला बोर्ड है और जो दूसरा बोर्ड है उसके बीच का गैप एग्जैक्टली जो ये 3 मंथ्स का ही है, या उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है? सीबीएसई क्या प्लानिंग कर रही है इसके? अभी वो फाइनल कुछ भी नहीं डेफिनेटली किया। घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि अभी सीबीएसई प्लानिंग कर रहा है। और जो पहला जी वाला होगा उसमें मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हम्म, जी सर। और सेकंड नहीं, वाले में प्रॉब्लम सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस दोनों होंगे। तो कुछ बच्चे मल्टीपल चॉइस में अच्छा करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज्यादा अच्छा करेंगे, और नहीं है तो फिर कंपार्टमेंट में जाएंगे। उसमें भी नहीं है तो देन दे कैन गो फॉर एनआईयूएस, सो दे विल गेट 4 चांसेस। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्चुअली ठीक है, इट्स ओके व्हाटएवर द सीबीएसई इज प्लानिंग, बट आई मतलब आई वांट जस्ट सजेशन फ्रॉम योर ऑल साइड दैट की whether it is okay that ki just going with the means like objective types questions only in the very first time, but subjective questions also देखिए, should be added in that. हाँ, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में एक तो आपका स्कोप बढ़ जाता है। 1 मिनट में आपको 2 मिनट में एक सवाल करने हैं। 50 क्वेश्चंस है, मुश्किल से 1.5 घंटे का टाइम देंगे, तो ज्यादा आपका जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो बढ़ जाएगा, कंटेंट आप ज्यादा चेक कर सकते हैं। नंबर 2, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से बनाए जाए तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसमें रटने का सवाल नहीं है। 100 क्वेश्चन Exactly, करने हैं आपको, exactly. 50 क्वेश्चन कर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड थिंग Exactly. इसमें Thank you, इसमें thank you, thank you, तो thank you. इसमें जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बच्चे को मल्टीपल क्वेश्चंस बड़ा अच्छा, वो हम लोग सोचते हैं कि 1 मिनट में एक सॉल्व करना है, लेकिन इसका 1 मिनट का एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पता नहीं कहाँ that is से the आ जाए main problem. जी that is I'm just simply asking and we are discussing on that because the students are not having the habit of the reading. Basically that is Yes, a problem nowadays. that is the तो वे problem. हैव टू Even वी हैव even टू even 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 yeah, even teachers also not focusing towards to that side. एग्जैक्टली The सर। main आई thing विल is मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी सर यहाँ पे, सॉरी आई जी 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 इंटरफेयर। हाँ, no issues, no issues, no issues. मैंने अपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट किया है एंड माय प्रिंसिपल इज प्रेजेंट हियर, बिंदु पिल्ले। हम लोगों ने देखा जी कि टीचर्स दे जॉब मिलने के लिए जो उनको क्वालिफिकेशन चाहिए वो पूरा करते हैं, चाहे वो पोस्ट जी ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन हो, सब कर लिया, लेकिन किसी दिन कोई जी बुक खोल के नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को हाँ जी हाँ एनसीईआरटी जी के बुक में जो है वो ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में रेफरेंस बुक लाइब्रेरी में होने के बावजूद वो किसी भी दिन लाइब्रेरी में नहीं बैठते हैं। सो दैट्स नहीं व्हाई बैठते आई हैं exactly. स्टार्टेड in my school, 1 period my teacher will sit in a library. तो यहाँ से Yes, टीचर Great. जब in our लाइब्रेरी school में, also it has been started, ma'am, already. All the yes, teachers will have 2 periods for library and they'll be spending time in library Yes, and they with have the to yes. refer the students, books.
And that Yes. application should be done in the class also where you are doing it. Exactly. Should be. For that, We I are following started that. Our principal ma'am has told Yeah. that. that we are doing, and they will make a one worksheet. And the questions are not from the NCERT books. It should be from outside. तो चैप्टर एंडिंग का एक वर्कशीट हम लोग बनवाते हैं जिससे सब चीज कवर होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो बच्चों को चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में तो है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम कोई एक्स्ट्रा नॉलेज हम बच्चों को देना चाहते हैं, so teacher has to go and sit in a library and read the book. Yes, We are Neetu, maintaining the Uh, record also, ma'am, for that. It's a really very nice discussion. Basically, as ma'am is saying that we are focusing towards the teachers, that teachers should go to the classes. But I'll request to all that we should plan that we should make this habit of students as well. We should inculcate this habit that yes, and we should have the record of also of the students, whether when they are going to the library, what they have studied over the, what they have read over there. Yes, We should yes. have that record of that as well. True. I think in the internal assessment marks, we should add that marks also for the library reading as part. सर रीडिंग का जो उसमें दिया हुआ है आपके जो एनरिचमेंट में, तो वो आप लाइब्रेरी जी। बुक उसने कितना पढ़ा है आप वहां से लीजिए। कहीं जी। कंपलसरी थोड़ी है कि आप आपके टेक्स्ट बुक को ही पढ़ाओ और वहां से रीडिंग हैबिट आप देखो उनकी मार्क्स। तो यू कैन टेक Exactly. गिव अ मार्क्स फ्रॉम देयर आल्सो। वी आर डूइंग दैट। मल्टीपल टेस्टिंग 2 मार्क्स का है, लैंग्वेज में 3+2। जी सर, जी उसमें आप लाइब्रेरी रीडिंग डालती। जी ये- sure बिल्कुल सर। स्पेशल थैंक्स Thank टू you. जैन सर, स्पेशल थैंक्स टू No, जैन सर फॉर thank द you, थैंक यू सर। Thank you, my sir. pleasure। आप लोगों सबसे मिल लिए। Thank you, Vishnu sir. जी थैंक यू Neha ma'am, वेलकम सर। you want to ask question? Neha ma'am, Neha Girdhar. I must thank you, Vimal sir and Pinky ma'am. Thank you And very much. thank you too, ma'am. It was a very grateful session and knowledgeable. I thank to all the educators. I request to all the educator के next webinar हमारा जो next week होगा कि आप लोग सारे ही ऐसे ही हमारे साथ join करें और अपनी knowledge को हम एक दूसरे के साथ बढ़ाएं। और सीमा मैम, वीके जैन सर, स्पेशली आप लोगों के लिए ये नहीं है कि आपने आज अटेंड किया और नेक्स्ट में नहीं आना। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम हर बार मिलके बहुत अच्छा करें और बहुत अच्छा आगे हम एजुकेशन को लेके जाएं। Thank you all. Thank you very much. It was a very nice organized. It was very nicely organized, Thank you, and sir. it was Thank great pleasure for me also. you, too, sir. Thank you very much. Thank you. very Thank you. much. Thank you. Thanks